میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں مسلمانوں سے ان کے جو علماء ہیں، ان کے جو اسکالرس ہیں، صدیوں سے ان کو اندھیرے میں رکھتے آئے ہیں، اور میں مسلمانوں کو روشنی کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ جس عربی کتاب کو مان رہے ہو اس کو جاننے کی کوشش کرو، خود سے اس کی لینگویج سیکھو اور ڈائریکٹ سمجھنے کی کوشش کرو۔ اپنے ملاؤں کے جو ہے کے کندھوں پر اپنی زندگی مت گزارو۔ آپ ذمہ دار خود اپنے ہو، اپنی ذمہ داری سمجھو اور اس زبان کو سیکھو اور قرآن کو ڈائریکٹ سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو آپ بتائیے کہ اصل آئینہ میں دکھا رہا ہوں اور اصل جو ہے تعلیم میں دے رہا ہوں یا ان کے ملا دے رہے ہیں؟ جی جی یہ جو ملا تو صدیوں سے جو ہے مسلمانوں کو اندھیرے میں رکھتے آئے ہیں، میں ان کو روشنی دکھا رہا ہوں۔ جی بالکل 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 بالکل، اور ڈیفینیٹلی میں آپ کے چینل کی تو ضرور میں ان کو آپ کے چینل کو دکھایا کروں گی لوگوں کو اسکرین پہ، اس کو میں نوٹ کروں گی اور اسکرین پہ دکھایا کروں گی تاکہ لوگوں کا دھیان آئے اس طرف، کیونکہ یہ بہت کروشل ہے۔ اور اگر آپ اجازت دیتے ہیں سچ والا جی تو میں آپ کے چند ویڈیو کو شیئر بھی کرنا چاہوں گی اپنے چینل پہ، اگر آپ اس کی آف کورس اجازت دے تو۔ جی ہاں ضرور، آپ کی جو ہے نہ صرف آپ کی بلکہ جتنے بھی جو ہے لوگ اس کو دیکھیں گے اور شیئر کریں گے۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ میسج لوگوں تک پہنچے اور مسلمان، کیونکہ مجھے سب سے زیادہ ہمدردی، سب سے زیادہ محبت مسلمانوں سے ہے۔ دوسری کمیونٹی سے محبت سیکنڈری ہے، لیکن مسلمانوں سے مجھے سب سے زیادہ ہمدردی ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کی پر جو ہے مجھے ترس آتا ہے۔ وہ لوگ ملاؤں کے جو ہے مطلب شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں صدیوں سے، ان سے جھوٹ کہا جاتا رہا ہے ترجموں کے جو ہے کے نام پر، انہیں قرآن نہیں بتایا گیا۔ ملا چاہتے ہیں کہ مسلمان قرآن سے دور رہیں، میں مسلمانوں کو چاہتا ہوں کہ قرآن کے قریب آؤ، قرآن کو ڈائریکٹ سمجھنے کی کوشش کرو، محنت کرو اور اس کی زبان کو سیکھو۔ جی پتہ ہے طارق جمیل نے، اگر میں نے غلط نہ دیکھا ہو، طارق جمیل نے، یہ میں اسے ویڈیو ڈھونڈوں گی، طارق جمیل نے ایک جگہ پہ کہا ایک ویڈیو پہ کہ آپ کو قرآن کو یوں پڑھنے کی ضرورت، سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تلاوت کرو، بس تلاوت کرو، مطلب اندھوں کی طرح اس کو پڑھو بس۔ یہ لوگ یہ آمینہ جی، جتنے بھی ہمارے علماء ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو بس تلاوت کر لو اور اگر پڑھنا بھی ہے تو اس کا ترجمہ پڑھو بس۔ تم اگر قرآن کو ڈائریکٹ سمجھنے کی کوشش کرو گے تو بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ وہ اس طرح سے مومنین کو، مسلمانوں کو ڈراتے ہیں، وہ قرآن سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ علماء، یہ اسکالرس مجرم ہیں، کرمنلز ہیں میری نظر۔ بالکل بالکل، آپ یقین کریں، کوئی یقین تو مجھ پہ اس وقت نہیں کرے گا، مگر میں ذاکر نائک کی اتنی بڑی فین تھی، او ہو کہ میں کہتی تھی میرا ایک سوال ہے تو ذاکر نائک کے پاس اس کا جواب تھا، میں اس کی فین تھی لٹرلی۔ اور ایک ہے مفتی مینک، بس یہ دونوں کی تو میں، اور ڈاکٹر صالح بھی تھوڑا سا۔ اچھا، جب میں نے خود کتاب کھولا قرآن شریف، میں نے ذاکر کو سننا چھوڑ دیا، میں نے کہا میں دیکھوں مجھے خود کو کیا جواب ملے گا، مطلب میں خود تو پڑھوں، پتہ نہیں سچ بھی بول رہے ہیں کہ نہیں۔ میں نے خود جب قرآن کھولا، پڑھنا شروع کیا، میں نے کہا ہے، میں نے کہا ذاکر جو وہ اس وقت کہہ رہا تھا یہ تو قرآن میں نہیں لکھا، وہ جو فلانا کہہ رہا ہے وہ تو قرآن میں نہیں لکھا۔ تو میں آپ کے ساتھ بالکل اگری کرتی ہوں سچ والا جی کہ ملا دے آر دا کرمنلز ان دیٹ سینس دیٹ دے لائی۔ قرآن میں ابھی آپ نے ایک پورے لفظ کو پکڑا ہے کہ جو کہ انہوں نے پتہ نہیں پریزنٹ ٹینس میں جیسے دکھایا ہے، پریزنٹ یا سیکنڈز میں، مگر محمد از ایکچولی ان تھرڈ پرسن قرآن میں۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ وہاں پہ لکھا ہوا از، مگر ان ریالٹی اٹس اے واز۔ تو اگر یہ جھوٹ نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ اس میں اگر ملا جھوٹ لوگوں کو نہیں بول رہے تو کیا ہے؟ مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر چھوٹی بات پہ آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں یہ ملا ذات، تو آپ امیجن کریں کہ اور کتنے باتوں پہ آپ کو یہ دھوکہ دے سکتے ہیں۔ آپ صرف سوچو اس چیز کو۔ کہتے نہیں ہے ایک دفعہ وشواس، اگر ایک ریلیشن شپ میں بھی ہو، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے کسی دوست کے ساتھ، ایک دفعہ وشواس ٹوٹ گیا، اس کو جوڑنے میں ٹائم لگتا ہے، وہ واپس کبھی کبھی آتا ہی نہیں ہے۔ تو ایک ملا جب آپ کو اس بات پہ جھوٹ بول سکتا ہے، ایک قرآن کی غلط ٹرانسلیشن بنا سکتا ہے، تو کیا وشواس ٹوٹا نہیں؟ کیا قرآن کی کرپشن نہیں ہوئی؟
अल्लाह तो कहता है कि कुरान को मैंने लूहे महफूज रखा है ना, आई विल गार्ड ओवर द कुरान। तो अल्लाह ने इस कुरान की गार्ड कैसे की कि एक मुल्ला ने इसकी करप्शन कर दी है? समझ में आई? लोग कहते हैं, मुसलमान कहते हैं कि कुरान की कभी करप्शन नहीं हो सकती। अगर ये करप्शन नहीं है तो क्या है ये? मगर नहीं, सीरियसली ये आपकी बड़ी मैं तो सोच में चली गई हूँ भाई। वाकई में जनाब आली, मैं आपको एक बरादराना नसीहत करता हूँ, मशवरा देता हूँ। देखें, आप मेरे छोटे भाई हैं। यहाँ मैं जो बैठा हूँ, मैं मुसलमानों को गुमराह नहीं कर रहा, मैं बल्कि उनको आईना दिखाना चाहता हूँ। मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप अपना होमवर्क करें, आप कुरान की लैंग्वेज को, कुरान की जो टंग है, कुरान की लिसान को सीखें, वक्त निकालें, अपना क्वालिटी टाइम निकाल कर कुरान की जो है टंग है, कुरान की जो लिसान है, उसको आप सीखें और कुरान के टेक्स्ट को डायरेक्ट पढ़ने की, समझने की कोशिश करें। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं बार बार, तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूं। भाई आप लोग अपना काम तो करते नहीं है, आप लोग जो है ईमानियात पे चलते हो, आपको सिर्फ तर्जुमों से जो है सरोकार है, आपको एक्चुअल टेक्स्ट से कोई सरोकार है नहीं। आप जो है इस अरबी किताब पर ईमान तो लाते हो, लेकिन इस अरबी किताब की जबान को सीख कर उसको समझना नहीं चाहते। ये प्रॉब्लम आपकी है या मेरी? जरा सुनिए, आपकी प्रॉब्लम है या मेरी प्रॉब्लम है? मुझे तो मैं इधर अगर इजाजत हो तो मैं एक कमेंट जरूर बोलूंगी। देखें, लाइस एक्सपोजर थोड़े वक्त पहले हम लोगों ने एक सूरत पे बात किया जो कि मुझे पता नहीं था, क्योंकि सच वाला जी ने बताया कि मोहम्मद जी जो हैं वो कुरान में पास्ट टेंस में लिखे गए हैं। और अगर आप कुरान की ट्रांसलेशन देखें, अगर आपको लगता है आपको भी अरबिक नहीं आता, तो जो ट्रांसलेशन लिखा होगा आप तो उसको अंधों की तरह यकीन करोगे। मैंने भी किया है, मुझे भी पता नहीं था। ठीक है, इंसान विश्वास करता है कि जो ट्रांसलेशन हुई जा रही है, मुल्ला कर रहे हैं, वो ठीक है। मगर अभी अभी स्क्रीन पे दिखाया गया है कि जहां पर इज लिखा है वो बाकी में सही में अरबिक में मतलब है वॉज, था, नॉट इज, है नहीं, था। सामने सामने हम लोगों ने चंद मिनट पहले स्क्रीन पे दिखाया है। आई थिंक वो कौन सा सूरा था कि वो किसी का बाप नहीं है तो पता नहीं क्या, तो उसमें पता नहीं आमिद है कि नहीं है, वो स्क्रीन खोलती भी दिखाती है। चैप्टर नंबर 33 की बात है, चैप्टर नंबर 33 आया नंबर 40, राइट? यस, जी हाँ, जी हाँ जी। मुझे नहीं पता कि आमिद ने खोला हुआ नहीं खोला हुआ, पता नहीं किधर गायब हो गया वो भी। मगर ये कि उसमें लिखा हुआ है कि ही इज नॉट द फादर ऑफ, और इस तरह आगे आगे आगे। मगर बेसिकली उसका मतलब ये है कि मतलब वो है नहीं की बात हो रही है, वो था की बात हो रही है इधर। अगर आप उसकी अरबिक को पढ़ो, उसके एक्चुअली हम लोगों ने स्क्रीन में दिखाया, अगर आप गूगल ट्रांसलेट को देखो, उसमें वो अरबिक का सेंटेंस डालो, पूरा एक जो है उसमें यही आएगा कि इट इज वॉज, पास्ट टेंस में है, मगर मैनिपुलेट किया हुआ है इनके ट्रांसलेशन में। तो आप खुद सोचिए लाइव एक्सपोजर कि आपके फिर मुल्ला कितना झूठ बोल रहे हैं। मुल्लाओं को तो आखिर अरबी आता है ना। लेट्स से आपको नहीं आता, मेरे को नहीं आता, अरे भाई मुल्लाओं को तो आता है। उनको तो आखिर पता होगा कि सूरह 33 आया 4 में लिखा हुआ है था, तो वो लोग क्यों नहीं सच्चाई को सामने पेश कर रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ वो भी झूठ में शामिल है। इसका मतलब ये हुआ वो भी झूठ बोल रहे हैं अपने मुस्लिम लोगों को। तो अगर वो झूठ बोल रहे हैं इतने से लफ्ज को, तो और कितना झूठ बोलेंगे आपके ख्याल में? तो जो सच वाला जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर चीज को अंधों की तरह हमको यकीन नहीं करना चाहिए क्योंकि कोई मुल्ला कह रहा है। कोई मुल्ला कह रहा है तो सच कह रहा है, क्योंकि वो अरबी के 2-3 लफ्ज मार रहा है। यहां पर अभी अभी अगर आप थोड़ा सा, मैं भी टाइम स्टैंप लगाऊंगी तो आप देखिएगा, सच वाला जी ने, हम लोगों ने अभी स्क्रीन पे दिखाया था, लिटरली गूगल ट्रांसलेट में भी दिखाया हम लोगों ने। और सच वाला जी ने, मैंने अभी, अब तो मैंने ग्रामर सीखना है अरबी का। पहले मैंने सोचा था कि मैं नहीं करूंगी, कम से कम ग्रामर तो सीखूं, पढ़ना तो आता है मेरे को, शुक्र है। मगर मैं कहूंगी इसके बाद जो मुस्लिम सुन रहा है इस वक्त, प्लीज लर्न द अरबिक लैंग्वेज। आपको वो सच्चाई नजर आएगा कुरान का कि आप हत्ता पत्ता रह जाओगे।
अल्लाह जो है, जहां तक मैं समझती हूँ, एक दो जगह में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गाली तक दे रहा है, मगर उसका ट्रांसलेशन अलग से है। हम कोई इधर बैठ के झूठ नहीं मारते। और सच वाला जी तो ऐसे टॉप के हैं, अभी मैं उनका चैनल का भी मैं नीचे अपने, जबकि लाइव खत्म होगा उधर भी मैं इनके सारे 3 चैनलों का मैं नाम दूंगी कमेंट सेक्शन में, ताकि हर कोई उसको मैं टैग भी कर दूंगी, ताकि वो उधर ही रहे, हर कोई जाके उसको देख सकेगा। सच वाला जी को वो पता है, वो सवालों का पता है जवाब कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ये कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं है। ये एक किस्म का कह सकती हूं मैं कि किस्म के मेरी टीचर हैं। मैं इनके पास जाती हूँ, पूछती हूँ, और ये इन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है। तो लाइज एक्सपोजर, हम किसी इंसान को हेट नहीं करते, हम किसी इंसान को हेट नहीं करते। हम क्या कर रहे हैं लाइज एक्सपोजर? हमने अल्लाह को गाली दी, मोहम्मद को गाली दी, आपको गाली दी नहीं। इस वक्त बैठ के इस्लाम के ऊपर बात करें, जो कुरान के अंदर है, जो हदीस के अंदर है, जो अल्लाह ने कहा कुरान में या मोहम्मद ने कहा, हम उस पे बातें करते हैं लाइव एक्सपोजर। और हम लोगों ने वो इस वक्त एक्सपोज किया है, टू बी ऑनेस्ट, कि देखो कुरान में इज लिखा हुआ है, मगर इन रियलिटी इट इज वॉज, ही वॉज नॉट योर, यू नो, ऐसे ऐसे ऐसे। मैं तो देखें कैसी आसमान से छू रहे हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये तो अल्लाह का कलाम है। अरे भाई, अल्लाह का कलाम कहाँ है भाई? कौन सी आयत ऐसी जो वो जो कह रही है कि अल्लाह का कलाम है? जरा बताओ। हाँ, ये भी आपने सही बोला। भाई अल्लाह तो आयम है, अल्लाह तो थर्ड पर्सन है, अल्लाह का कलाम कैसे हो गया भाई? एक चीज मुझे समझ में नहीं आता, सच वाला जी, पता नहीं आमिद सुन रहा नहीं सुन रहा। आमिद, अगर आप सुन रहे हो तो अपना स्क्रीन शेयर करो, सूरा नंबर 3 आया नंबर 18। मैंने जरा सच वाला जी से ये दिखाना है, बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग है। आमिद, अगर आप हो, अपना स्क्रीन जरा खोलना। आयु देर, क्योंकि आप बड़े खामोश हो, मैंने आपको पहले भी पूछा था। एंड यस, गुड। आपके लिए बड़े प्यारे प्यारे लोगों ने कमेंट्स दिए, तो मैंने कहा मैं आपको भी दिखा दूं, बोल दूं। सच वाला जी, ये है एक, ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सा सूरा आया है, जो कि जब मैंने इसको देखा तो मैंने कहा ये तो बड़ा ही अजीब और गरीब है। मैंने किसी प्रॉफिट या मैसेंजर को ये बोलते हुए नहीं देखा, नबी या रसूल को। ये अल्लाह क्या कर रहा है इधर? ये है सूरह अल इमरान आया नंबर 18। ये आप जरा देखिए, बड़े मजे की चीज है। ये आप जरा अरबी में पढ़ के बताइए इसका मतलब क्या है। थैंक यू। हाँ, ये 18वीं आयत है सूरत आले इमरान की जी। शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। जी, अब देखें, ये अजीब सी बात है कि अल्लाह जो है खुद गवाही दे रहा है कि वो जो है वो इलाह है, वो खुदा है। देखें, अल्लाह खुद जो है अपने खुदा होने की गवाही दे रहा है, और जो है फरिश्ते भी गवाही दे रहे हैं, और इल्म वाले भी गवाही दे रहे हैं कि वो जो है अदल, ये जो है एक दरमियाना जो है जो मामला होता है उसे क़िस्त कहते हैं। ये अदल को कायम करने वाला है, और नहीं है कोई माबूद मगर वो। अब देखिए, यहाँ पर इस आयत में अल्लाह गायब है जी। ये आयत को लिखने वाला ये बात लिख रहा है, और ये आयत खुद कह रही है कि अल्लाह इसमें गायब है। देखिए, ये आयत क्या कह रही है? अल्लाह गवाही दे रहा है, अल्लाह ने गवाही दी। शहीदा, ये पास्ट टेंस का और गायब का सिगा है। शहीदा पास्ट टेंस है और गायब का सिगा है। अल्लाह ने गवाही दी कि उसके सिवा के कोई नहीं है, कोई माबूद मगर वो।
गवाही दी अल्लाह ने कि नहीं है कोई माबूद मगर वो। क्या मतलब है इसका? कि कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। ये बड़ा ही अजीब है। अगर अल्लाह कहता तो ये लफ्ज क्या होता है यहाँ पर? अशहदू, अशहदू होता मैं गवाही दे रहा हूं। यहाँ क्या है? वो गवाही, उसने गवाही दी। किसने? अल्लाह ने। तो ये खबर, ये बात कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। अगर मैं अपने बारे में कहूं, अब इतनी बातें सारी आप सुन रही हैं, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप सेकंड पर्सन हैं, तो क्या मैं अपनी हर बात वो कह के कहूंगा? वो कहूंगा या मैं कहूंगा? कैसे कहूंगा मैं, बताइए? नहीं, आप तो मैं करके कहूंगा ना, आप अपना बोलेंगे। बात है, अगर मैं फर्स्ट पर्सन हूं तो, लेकिन कुरान में तो अल्लाह फर्स्ट पर्सन है ही नहीं। शहीदा ये माजी गायब का सिगा है। अन्नहू ये हु में जो है ये भी वो है, और हुआ ये भी वो है। उसके बाद ला इलाहा इल्ला हुआ वो भी वो है। सारा का सारा वो है, पूरा पास्ट टेंस है। इसमें कहीं भी जो है प्रेजेंट टेंस है ना, तो प्रेजेंट कोई वर्ड है ना प्रेजेंट कोई टेंस है। तो इसका फिर मतलब क्या हुआ कि ये कौन शहादा दे रहा है? कुरान के लिखने वालों ने शायद ये इस तरह की बात जो है हम पर थोपी। सीधी सी बात है। मगर सवाल ये है कि कुरान को लिखा किसने? तो उसका मतलब ये है कि वो लोग दिखा इस तरह से रहे हैं जैसे कि अल्लाह शहादा दे रहा है। सही है ना? एग्जैक्ट यही तो है ना। अब हमारे ट्रांसलेशंस में यही तो जो है सारी बातें होती हैं, और पढ़ने वाले, अच्छा होता ये है कि इस किताब की जिस तरह से मार्केटिंग की गई है, असल में मार्केटिंग का कमाल है। कमाल इस किताब का नहीं है, कमाल है असल में इसकी मार्केटिंग का। समझिए आप बात समझिए। कमाल किताब का नहीं है, कमाल है इस किताब की जिन्होंने मार्केटिंग की है, वो है असल में उसका कमाल। इस किताब के बारे में ये बार बार बताया गया, जताया गया कि ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह के पास से आई है, ये अल्लाह की किताब है, ये इसमें अल्लाह का कलाम है। ये बात हमें बार बार बताई गई। और सामने मोमिनीन है, मोमिनीन का काम तो होता मानना। उनको जानने से कोई सरोकार है ना, मान और न जांचने से कोई सरोकार है। जानना चाहते हैं ना, जांचना चाहते हैं ना, परखना चाहते हैं। टेक्स्ट के बारे में कोई नहीं है कि उसमें क्या लिखा है। उनकी सारी बेसाखियों का सारा काम तो तर्जुमों की बेसाखियों पर होता है। अब आपने जो आयत पेश की, उसमें 1 2 3 4 बार जो है पास और जो है गायब के तेरे हैं, गायब के अल्फाज। इसमें एक वर्ड भी प्रेजेंट का नहीं है। अल्लाह इसमें टोटली जो है थर्ड पर्सन है। कोई और है जो अल्लाह के बारे में इस तरह से डिस्क्राइब कर रहा है कि अल्लाह ने गवाही दी। अल्लाह ने गवाही दी कि अल्लाह खुद कह रहा है कि वो नहीं है कोई माबूद मगर वो। क्या मतलब? उसके अलावा अगर अल्लाह कहता तो अल्फाज क्या होते? अशहदु अन्ननी ला इलाहा इल्ला अना। ओह माय गॉड। अशहदु अन्ननी ला इलाहा इल्ला अना। और लास्ट में भी एंड में क्या होता? ला इलाहा इल्ला अनल अजीजुल हकीम। इल्ला हुवल अजीजुल हकीम नहीं होता। लोग कभी इस पर गौर ही नहीं करते ना। कोई मोमिनीन का काम गौर करने से का होता ही नहीं। उनको क्या ट्रांसलेशन है? उनको तो ट्रांसलेशन है, उनको तो मानना है, बात खत्म। उनकी गाड़ी चल रही है। मतलब ये तो साफ एक तरीके से देखा जाए ट्रांसलेशन में भी दिखाया जा रहा है कि समथिंग इज रॉन्ग। असल में बात ये है ना, ट्रांसलेशन में वो लोग मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि पढ़ने वाले का दिमाग इधर उधर जो है न भटके, वो इधर उधर ना उलझे। एक तो वो अपनी तौर पर जो कोशिश करते हैं, ठीक है, और दूसरा ये है कि ओवरऑल इस किताब को लेकर जो अकीदा मुसलमानों के जहनों में बचपन ही से जो है ठोसा जाता है। बचपन ही से बच्चा, मुसलमानों का बच्चा जब बोलने लगता है तभी से उसके अंदर ये बात
اس کی گٹھی میں گھول گھول کر پلائی جاتی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں اللہ نے کہا ہے، اللہ نے ایسا بولا ہے، اللہ نے ایسا بولا ہے، اللہ نے ایسا کہا ہے۔ ارے بھائی کوئی ایک آیت تو بتاؤ جس میں اللہ نے خود ایسا بولا ہے، کوئی ایک آیت دکھا دو جس میں اللہ نے خود ایسا بولا ہے۔ پھر تو وہ آپ کو ایک بھی آیت نہیں جس میں اللہ نے ایسا بولا ہے۔ پھر تو وہ یہ بول سکتے ہیں نا کہ نہیں تو اگر مطلب اس میں اس لیے اللہ کا ڈائریکٹ ورڈ نہیں ہے کیونکہ اللہ نے کسی اور کو بولا تو اس نے لکھا ہے، یہ آپ کو پھر یہ لکھ اور بات کریں گے نا، یہ ان کے پاس تو اتنے ایکسکیوزز ہوتے ہیں۔ نہیں اللہ نے بولا، پھر آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ کوئی لکھنے والے کا ثبوت تو ہے ہمارے پاس کہ لکھنے والے ہاتھ ہیں، لکھنے والے پیپر ہیں، جو بھی ہے ساری چیزیں۔ اللہ نے ایسا بولا، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ ذرا مجھے بتائیے کیا ثبوت؟ لکھنے والے کو کسی لکھنے والے کو اللہ نے ایسا خود کہا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ کیا اللہ خود نہیں لکھ سکتا تھا؟ جی وہی تو اللہ ان لکھنے والوں کا محتاج کیوں ہے؟ اللہ یہ جو عربی اللہ ہے یہ بھانت بھانت کے ترجمہ کرنے والوں کا محتاج کیوں ہے؟ دنیا بھر کی لینگویجز میں الگ الگ طرح کے جو ہے ایک تندانہ ایک تماشا کر کے رکھے ہیں جتنے ترجمہ کرنے والے۔ اب آپ ایک ایک لینگویج کو دیکھیں، اس میں 100 جو ہے ٹرانسلیشن ہوئے ہیں، اور ہر ٹرانسلیشن ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہے۔ یہ سارے تماشے کیا ہیں آخر؟ اور آج تک پھر کوئی سمجھ میں نہیں آتا کہ جو ہے اللہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ جی ایک آیت ہے، اس میں جو ہے جتنے لینگویجز ہیں اس میں ہر لینگویج میں آپ کو جو ہے 20-50 جو ہے آپ کو ٹرانسلیشن ملیں گے۔ اس کے بعد ہر ایک ٹرانسلیٹر اپنی ایک نئی دکان کھول کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور ایک اور چیز مجھے سمجھ میں نہیں آتا سچ والا جی، کہ یہ لوگ تفسیر کیوں لکھتے؟ تفسیر تو خدا کے خلاف ہے۔ مطلب اللہ تو کہتا ہے کہ اسی کی طرح تم لوگ بناؤ، تو انہوں نے تو پورا ایک آیا لے کے اس کا پورا ایک مطلب نکال دیا ہے۔ میں ان سے پوچھوں، ارے بھائی تم لوگوں کو لائسنس کس نے دی ہے؟ تم لوگ کیا اللہ سے گفتگو کر رہے تھے جب تم لوگ یہ تفسیر لکھ رہے تھے؟ یہ تو بہت بڑی حرکت ہے کرنے والی، کہ تم لوگوں کو کس نے بتایا کہ اس آیا کا ریئل مطلب کیا ہے؟ آپ سمجھے نا میرا مطلب؟ جو اتنا بڑا بڑا لکھتے ہیں تفسیر، یہ کیا اللہ کے مطابق، قرآن کے مطابق اگر دیکھا جائے یہ لیگل ہے کیا؟ مطلب ان دا سینس لیگل کہ یہ کیا شرک نہیں ہے؟ یقیناً ہے، یہی بات ہے۔ اب دیکھیں میں یہاں پر آپ کو ایک اور پوائنٹ جو ہے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا ہمارے جو درشک ہیں، وہ ہمارے جو ویورز ہیں، وہ ذرا غور سے سنیں میری بات۔ میں ایک پوائنٹ یہاں رکھنا چاہتا ہوں، آپ ذرا غور کیجئے کہ مسلمانوں کا یہ کہنا ہوتا ہے نہیں بھائی وہ جو ہے ٹرانسلیشن کے گبڑے ہیں، کے گھپلے ہیں، انہوں نے گڑبڑ کر دی، وہ ایسا لکھ دیا، وہ غلط ہے، اعلیٰ ہے، فلاں ہے، ساری چیزیں۔ یعنی ہر ایک جو بھی اسکالر آئے گا وہ کہے گا نہیں یار یہ تو ترجمہ میں غلط ہوگی نا، یہ تو ترجمہ میں ایسا ہو گیا نا، وہ ترجمہ کرنے والے نے غلطی کر دی نا۔ اچھا یہ غلطیاں صدیوں سے چل رہی ہیں اور ہر لینگویج میں چل رہی ہیں۔ میں جو ہے یہ مسلم اسکالر سے ایک بیسک کویشچن کرنا چاہتا ہوں، ذرا دیکھیے، اور اس میں اپنی ایک ایگزامپل بھی دینا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا سوچئے، میں نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب میں جو کچھ میں نے لکھا وہ پبلش ہو کے لوگوں کے سامنے آ گئی، اور جو ہے وہ لوگ اس کو پڑھے اور جو ہے دنیا میں دھوم مچا دیے، ہر طرح ہر جگہ پریشانیاں ہی پریشانی ہو گئی، اور میں زندہ ہوں۔ میں نے جب دیکھا کہ میری کتاب کا امپیکٹ یہ ہوا ہے کہ لوگوں میں جو ہے فساد برپا ہو گیا، لوگ ایک دوسرے کو مار توڑ کر رہے ہیں، تو اب میں کیا کروں گا؟ فوری بیچ بچاؤ کر کے لوگوں کے سامنے آؤں گا اور بتاؤں گا کہ لوگوں، میں نے جو کتاب لکھی، میں نے جو سینٹینس جو باتیں کی ہیں، وہ ان کا ایکچول مطلب یہ نہیں ہے، اس کا اصل مطلب یہ نہیں تھا، تم لوگوں نے غلط سمجھا ہے، اس کا اصل مطلب یہ ہے۔ اگر میں زندہ ہوں تو میں یہ کہوں گا، اگر میں مر چکا ہوں ظاہر بات میں نہیں کر سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ کی ہے، اور اللہ اگر زندہ ہے اور اس کی کتاب کو لے کر گتھم گتھا مارا ماری صدیوں سے جاری ہے، تو اس کا مطلب اللہ زندہ ہے یا مردہ ہے؟ مر چکا ہے وہ خود بیچ بچاؤ کیوں نہیں کرتا؟ کی کتاب کی ایک ایک آیت کو لے کر لوگ صدیوں سے جو ہے لوگ فقطعوا ایدیہم کے عنوان سے لوگ چور کے ہاتھ کاٹ رہے ہیں، اور زانی اور زانیہ کے جو ہے مطلب اس کو کوڑے مار رہے ہیں،
اور جو ہے ہر جگہ قتل و قتال کا بازار گرم ہے. اگر اللہ اتنا رحم دل ہے، اتنا رحمان ہے اور اتنا اچھا ہے اور وہ جو ہے اپنے انسانوں کی اور زمین پر فساد نہیں چاہتا، تو وہ سامنے آ کر یا ایک اور نبی کو بھیج کر جو ہے وہ یہ جو ہے مطلب کلیئر کر دے کہ نہیں، پچھلی کتاب میں جو باتیں کی گئی ہیں لوگوں نے اس کو غلط سمجھا، اس کا ایکچوئل مطلب یہ ہے. کیا ایسا ہوا؟ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ قرآن کا جو اللہ ہے وہ فوت ہو چکا ہے، وہ زندہ نہیں ہے. اگر وہ زندہ ہوتا بالکل سامنے آتا اور بتاتا لوگوں کو، اور وہ جو ہے یہ کلیئر کرتا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، لوگوں کو غلط لے، اس کا یہ ایکچوئل مطلب یہ ہے، اس کتاب کو میں نے بھیجا ہے اور تم لوگوں نے غلط سمجھا ہے، اس کا اصل مطلب یہ ہے، یہ بتاتا. ہوتا نا ایسا ہی؟ آپ نے بالکل صحیح کہا. ایک پوائنٹ تو آپ نے بولا، وہی بات ہے، میں کتنا کچھ سیکھ رہی ہوں. آج میں نے یہ بھی سیکھا. دیکھیں کہ یہ بات تو میں نے اتنا غور نہیں کیا تھا. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے یہ بات کہی. واقعی میں جب انسان ایک کتاب لکھتا ہے اور دوسرے نے اس کتاب کو پڑھنا ہوتا ہے، اس کے پاس تو کوئی رائٹ نہیں ہوتا کہ اس کتاب کو لے کے اس کی تفسیر بنانا شروع کر دے جس کسی اور نے لکھا ہو. اس کو کیا پتا ہے کہ میرے دماغ میں کیا گھوم رہا تھا جب میں نے وہ لکھا ہے. اگر اس کو ابھی وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ اپنی طرف سے کوئی لائن مار دے. بیسکلی یہ جو ان کے اسکالرز ہیں، ملاز ہیں، انہوں نے وہی حرکت کی ہے میرے جو سمجھ میں ہے. ایک سورہ ایک آیا کو لے کے اپنے خیال سے متفق اس سے لے کے اس کو لے کے اس کا اپنا مطلب نکال کے ٹھوس دیا ہے قرآن میں، جو کہ اللہ نے شروع میں نہیں کیا تھا. تو یہی سب سے بڑا شرک ہے. اور اگر آپ قرآن میں دیکھو، اکارڈنگ ٹو قرآن ایٹ لیسٹ، سورہ نمبر 25 آیا نمبر 33، ادھر اللہ کہتا ہے سب سے بیسٹ ایکسپلینیشن میں ہے، بیسٹ تفسیر میں ہے. اس کے باوجود مسلمان جو ہے دوسری کتابوں کی طرف بھاگتے ہیں. یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں، ایک سیکنڈ میں آپ کو دکھاؤں. یامت نے میرے خیال سے کھولا ہے. 25 آیا نمبر 33. اس کو ذرا زیادہ بڑا کرنا پلیز، مجھے نظر نہیں آ رہا، بہت ہی چھوٹا. اتنی تو میری بھی آنکھیں اسٹرانگ نہیں ہے. امین، تھینک یو. پتہ نہیں سچ والا جی پڑھ سکیں گے یہ نہیں، مگر اٹ سیز پورے قرآن کی آیت نمبر 33 ہے جس میں کہا گیا ہے وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. اب دیکھیں کتاب یہ دعوے تو کرتی ہے کہ وہ تفسیر بھی ہے، بہترین تفسیر بھی ہے، وہ تفصیل بھی کرتی ہے، وہ ہر چیز کھول کھول کر بیان کرتی ہے، ہر چیز کلیئرٹی کے ساتھ بیان کرتی ہے، سب کچھ کلیئر کر دیتی ہے، سب کے لیے آسان ہے. یہ سارے دعوے یہ کتاب کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی ایک بھی آیت کی بھی نہیں پڑھتی نہیں، اور نہیں پڑھتی اسی وجہ سے تفسیریں لکھی گئی. نہیں پڑھتی اس لیے بار بار اس کے ترجمے کیے جاتے ہیں، اور ہر ترجمہ دوسرے ترجمے سے مختلف ہوتا ہے. آپ ایک ایک لینگویج میں آپ ایک ایک آیت کے ترجمے دیکھیں، اس میں ہر ترجمہ کرنے والا اپنے اپنے الگ انداز سے ترجمہ کرتا ہے، کیونکہ ہر آیت میں وہ ترجمہ کرنے کے دوران اپنے عقیدے جو ہے ٹھونس دیتا ہے. بالکل. اس دن میں نے کسی چیز پہ بات بھی کیا تھا، تو وہ بندہ جو ہے وہ یہی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. تو میں نے کہا دیکھو، جب اللہ ہی کہتا ہے کہ میں نے تم لوگوں کو مطلب بیسٹ تفسیر دیا، تو تم لوگ کہیں اور تفسیر میں کیوں گھس رہے ہو؟ مطلب اس میں تو کوئی سینس ہی نہیں دے رہا نا. تو یا حالانکہ سامنے کی بات ہے. آج تو مجھے بڑا ہی اچھا ٹپ ملا ہے کہ میں بولوں ان کو کہ تم لوگ کا یہ کانسیپٹ کہاں سے آیا. اور ایک اور چیز یہ لوگ تھوپتے ہیں ہمارے پہ. سب سے پہلے تو یہ ہم پہ یہ تھوپتے ہیں، جو ان کی بہت بڑی وہ حرکت ہے، کہ آپ کو عربی نہیں آتا تو آپ اسلام کے اوپر بات کیوں کر رہے ہو. یہ کیا نیا تماشا ہے ان کا؟ آپ یہ کچھ بتا سکتے؟ اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ آپ کو عربی آنا چاہیے قرآن کو سمجھنے کے لیے. اللہ کہتا نہیں ہے قرآن میں کہ میں نے یہ کتاب آسان لکھی ہے آپ کے لیے سمجھنے کے لیے. اس میں کیا نہیں؟ اب یہ مسلمانوں کی دوغلی پالیسی یا ڈبل اسٹینڈرڈ ذرا غور کریں کہ دنیا بھر میں جب کوئی اور اسلام کو قبول کرتا ہے، وہ نہ عربی جانتا ہے، نہ قرآن جانتا ہے، نہ حدیث جانتا ہے، نہ تفسیر جانتا ہے، نہ کچھ بھی نہیں جانتا.
وہ جب اسلام قبول کرتا ہے تو سارے کے سارے مسلمان تالیاں ٹوکیں گے اور ہر کوئی نعرے تکبیر کہہ کر اللہ اکبر کہتا ہوا اس کو سینے سے لگا لے گا. اس سے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ کیا آپ نے قرآن پڑھا ہے, کیا آپ نے قرآن سمجھا ہے, کیا آپ نے حدیثوں کا پورا مطالعہ کیا ہے, کیا آپ نے تفسیریں پڑھی, کیا آپ نے تاریخ پڑھی, کیا آپ نے فقہ پڑھی, کیا آپ پورے علماء کو سن چکے ہو. یہ اس سے کوئی نہیں پوچھتا. وہ بیچارہ اٹھ کر جو ہے جو صرف خالی وہ ہمارے ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرح جو ہے اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الا اللہ یہ طوطے کی طرح رٹوا دیتے ہیں اور وہ بیچارہ رٹ لیتا ہے. اس کے بعد سب لوگ سمجھتے تھے یار یہ تو مسلمان ہو گیا. نزدیک مسلمان یہ ہوتا ہے. اب ایک کوئی شخص جو ہے جب اس کو پوری زندگی پڑھنے کے بعد, اب میری زندگی لے لیں آپ, میں کسی اور کے ایگزامپل نہیں دوں گا, کسی اور کی ایگزامپل کو بازو رکھیے. میں جو اس وقت 58 ایئرس کا ہوں, لگ بھگ میں یوں سمجھیے کہ آج سے 2 سال پہلے, جسے باقاعدہ ایکس مسلم کہا جاتا ہے, میں 2 سال پہلے ہوا ہوں. اس سے پہلے تک تو میں آج سے میں جو ہے یوں سمجھیے 56 ایئرس تک جو ہے میں مومن تھا نا. اب آپ بتائیے کہ جو ہے جو اسکالر جو پڑھتے ہیں, جو سنتے ہیں, جو کرتے ہیں, میں نے اپنی زندگی کے 40 سال اسکالرز کے بیچ میں گزارے ہیں. میں نے قرآن پڑھی, اس کے کتنے ترجمے پڑھے, کتنی تفسیریں پڑھی, اور جو ہے خود عربی زبان میں پڑھی, حدیثیں پڑھی, فقہ پڑھی, آداب ہے, عقائد ہے, کیا کیا جو ہے ہر طرح کی سر پھوڑی کر لی. الٹیمیٹلی کیا ہوا, میں نے اسلام کو چھوڑ دیا. اب یہ کہتے ہیں یار تم اسلام کو سمجھے نہیں. بھائی کون سمجھایا مجھے؟ آج بھی سمجھاؤ, میں سمجھنے کے لیے تیار ہوں. میرے چند سوالات ہیں پوری دنیا کے اسکالر سے, میں کہتا ہوں میری ساری باتیں جاوید احمد غامدی صاحب تک پہنچتی ہیں, میری ساری باتیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب تک پہنچتی ہیں, میری ساری باتیں جو ہے اور دنیا کے اور بڑے اسکالر تک پہنچ رہی ہیں. مجھے اچھی طرح سے پتا ہے, لوگ مجھے بتاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں میں سے کوئی بھی یہ جرات نہیں کر رہا کہ مجھ سے آ کر 1 to 1 بات کر سکے, کیونکہ میرے جو سوالات ہیں اتنے گمبھیر ہیں کہ ان کے بعد جواب نہیں ہے. میں تو ان سے کہتا ہوں کہ بھئی میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں, میں ایک ادنا سا ایک معمولی سا اسٹوڈنٹ ہوں, میرے ذہن میں کچھ سوالات ہیں, پلیز آپ لائیو آئیں اور میرے سوالوں کا جواب دے دیں. اگر میرے مان لیں میں نے 10 سوال کیے اور ان میں سے آپ نے جواب دے دیے تو میں اسی وقت آپ کی باتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. لائیو میں نے کئی بار کہا ہے, میں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر دنیا کا کوئی اسکالر وہ محمد پریزنٹ میں محمد کو سیکنڈ پرسن, میں پھر کہہ دوں پورے قرآن میں محمد کو اگر دنیا کا کوئی بھی اسکالر سیکنڈ پرسن اگر ثابت کر دے تو میں محمد کو ماننے کے لیے تیار ہوں لائیو. اور یہ بھی یاد رکھیں اگر وہ ثابت نہیں کر سکا تو لائیو اس کو اس بات کا اقرار کرنا پڑے گا کہ محمد غائب ہے منظور. میرے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے, میری کوئی فالوئنگ نہیں ہے, میں کچھ کھونے کے لیے مجھے کھونے کا کچھ بھی ڈر نہیں ہے. میرے زندگی میں جو کھونا تھا میں کھو چکا ہوں, میرے سامنے کوئی ڈر نہیں ہے. ڈر ان ملاؤں کو, ان اسکالرز کو ہے کہ ان کو ڈر ہے کہ جو ہے یہ اگر جواب نہیں دے سکے میرے سوالوں کا تو ان کے پاس تو کیا بچے گا, کچھ بھی نہیں, بلکہ خود ان کے اسکالر خود ان کے فالوور جو ہے ان کا گلا دبا دیں گے. یہ ہے اصل بات, یہی وہ ڈر ہے جو میرا سامنا کرتی ہے. جی ان کو تو ویسے بڑا بولنا آتا ہے, آتے ہیں دوسروں کے چینلوں پہ بڑا غٹ مارتے ہیں مگر کہ اپنے ملاؤں کو تو لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. آپ جیسے لوگوں کے پاس ادھر ان کی بولتی جو ہے نا ان کی باٹ لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا ابھی تو آپ خانے کعبہ بھی گئے, آپ نے کچھ کیا کہتے ہیں کمپٹیشن بھی جیتے, مطلب جس طرح آپ نے بتایا. تو ابھی کوشچن آتا ہے تو کیا ہوا جس چیز کی وجہ سے آپ نے کہا میں نے اسلام میں رہنا نہیں ہے؟ کیا ہوا, کس بات پہ آپ کو, کس چیز نے آپ کو ٹریگر کیا؟ جو کہتے ہیں کچھ چیز انسان مطلب ایک مومن کو سوچ یا ایک مسلم کو سوچ میں لے جاتا ہے,
वो कौन सी चीज थी जिसने शुरू की एक चीज आपके अंदर कि भाई समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है इस इस्लाम में, वो क्या बात थी? अच्छा, जब मैं जो है कुछ बातें मैं इस पर गौर करने लगा, असल में ये गौर करने का जो है जो जो स्टेज है ये काफी देर से आया मेरी लाइफ में। अब बहुत से लोगों का बहुत जल्दी भी आ जाता है। अब हो सकता है शायद मैं बुद्धू था, मैं बहुत सारी बातों को उतना समझ नहीं सका, शायद ये मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन इतना है कि मैं बचपन ही से कुछ बातों को सोचता जरूर था, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरी सोच ही में कुछ फर्क है, मेरी अकल का कुतूर है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन इस्लाम तो बिल्कुल परफेक्ट है। हर बार मुझे ऐसा लगता था इस्लाम परफेक्ट है, लेकिन मेरी सोच का जो है फर्क है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन फिर कहीं ना कहीं मुझे कुछ गड़बड़ नजर आती, तो फिर जो है मैं अपने स्कॉलर से या अपने जो असातिज़ा हैं उनसे कुछ पूछता, तो वो भी मुझे गोल मोल जवाब देते, और फिर बहरहाल जो है वो कुछ बातों से जो है कहीं ना कहीं मुझे जो है घुमा फिरा। लेकिन मुझे एक और जो है वाकया जो मेरे बचपन के, जिस वक्त मैं जामिया में पढ़ रहा था, उस वक्त मेरी उम्र कुछ जो है शायद 13-14 साल थी। तो मैं अपनी क्लास में बैठा हूँ, हमारे जो उस्ताद हैं वो तिरमिजी का दर्स दे रहे हैं। तो उसमें एक हदीस आती है, वो हदीस कुछ इस तरह से है कि रसूलुल्लाह जो है वो कुछ दूध का या कोई और पीने की चीज का कोई प्याला जो है उनके सामने रखा गया, तो वो पी रहे हैं, पीना ही चाहते हैं कि उसमें मक्खी गिर जाती। तो अब वो क्या करते हैं कि उस मक्खी को अपनी उंगली से बाकायदा डुबोते हैं पूरी तरह से, उसके बाद में ऐसा लेकर वो मक्खी को बाहर फेंक देते हैं, और वो जो है वो दूध या जो भी पीने की चीज है वो पी जाते हैं। तो हमारे उस्ताद ने जब ये हदीस पढ़ी, तो मेरे साथ और दूसरे जितने भी मेरे जो है जो क्लासमेट्स थे, जो मुझसे एज में बहुत ज्यादा थे, मैं अपनी क्लास में सबसे कम उम्र था, मेरी एज सबसे कम थी। तो मैं इन सब को देख रहा, लेकिन किसी के चेहरे पर कोई जो है एक उतार चढ़ाव कुछ नहीं आया। लेकिन मैं हैरानी से मैं देखने लगा कि रसूलुल्लाह दूध में मक्खी गिर गई और वो मक्खी निकाले फेंक दी और दूध को पी गए। मुझे अजीब सा लगा, जिस वक्त मेरी उम्र शायद 14 साल, 13 या 14 साल है। तो मैं खैर उस वक्त मैं कुछ अजीब लगा, लेकिन फिर चुप हो गया। हुआ ये कि उसके कुछ चंद महीनों बाद वही उस्ताद मोहतरम और दर्ज दे रहे हैं, तो होता है कि दिन के वक्त उनको चाय पेश की जाती, सारे जो है जो टीचर्स को, तो उनको भी चाय पेश की गई। एक कप में जो है चाय वाला आता है, चाय डालकर चला जाता है। वो चाय डालकर गया, कुछ ही देर में उस चाय में मक्खी गिर गई। अच्छा, अब तो हुआ ये कि वो उस्ताद मोहतरम बड़े यानी बेचैन हो गए, कहने लगे यार उस चाय वाले को जल्दी से बुलाओ, जल्दी से बुलाओ, इसमें मक्खी गिर गई, वो जो है इसको फेंको और जो है दूसरी चाय लेने के लिए उनसे कहो। तो वो लड़के जो है दौड़े और जो है जल्दी से वो उस चाय वाले को बुलाया और कहने लगे कि चाय फिकवाई गई। उसके बाद कप को धोया गया, फिर उसके बाद जो है दूसरी कप में उनको उस्ताद को जो है जल्दी से चाय डालकर वो जो है चाय वाला चला गया। अब मैं ये मंजर देख रहा हूँ और मुझे उस दिन की बात याद आ रही है कि रसूलुल्लाह तो मक्खी वाला दूध पी गए और हमारे उस्ताद मोहतरम दूध ये चाय नहीं पी रहे जो मक्खी वाली, ये क्या चक्कर है? तो मैंने सादगी से हमारे उस्ताद से पूछ लिया कि मौलाना ये रसूलुल्लाह तो दूध वाला मशरूब पी गए थे, आप दूध वाली ये मक्खी वाली चाय क्यों नहीं पी रहे? क्या आपको जो है सुन्नत पर अमल नहीं करना है? तो अब वो मेरी बात सुन के जो है उस्ताद हमारे गर्म हो गए, कहने लगे बदतमीज। तो अब मैं सहम गया, मैं डर गया, यार इसमें मैंने कौन सी बदतमीजी कर डाली, मैंने कौन सा ऐसा नाजेबा सवाल कर डाला उनसे? मैं हैरान हो गया। अब वो मुझे जो है चुप करा दिए। मैं चुप तो हो गया, उनके बच्चा था और वो जमाना भी कोई इतना जो है बेबाक जमाना नहीं था। अब हम वैसे ही सीधे साधे घर के रहने वाले, तो अब मैं जो है उस्ताद ने डराया तो हम डर गए, सहम गए। लेकिन देखिए कि ये इस तरह की जो बातें होती ना, ये दिल के अंदर कहीं ना कहीं अपना घर बनाकर रहती हैं, वो दबती नहीं है। वो मजीद अब मेरे वक्त के साथ साथ मजीद जो है वो उभरती हैं और एक की जगह 100 सवालात जो है जन्म लेते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, क्योंकि एक वक्त वो आया
अगरचे कि काफी टाइम के बाद आया वो वक्त, लेकिन आया जरूर कि जो है मैं हदीस के पूरे जखीरे से जो है मैं अपनी जिंदगी से हटा दिया, हदीस के पूरे जखीरे को। मैं जो है प्योर कुरानिस्ट बन गया कि मेरा ईमान उस वक्त सिर्फ कुरान पर था, मैं हदीसों को अपनी जिंदगी से हटा चुका था। अच्छा, हदीसों को अपनी जिंदगी से हटाने का मतलब ये था कि मेरे घर वाले सारे के सारे, जिसमें मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे जो है 5 बहन भाई, मेरे 4 भाई हैं और 5 बहन, टोटल हम लोग 10 हैं। इन सब में सबसे बड़ा मैं हूँ। तो और मेरी वाइफ और जो है मेरी बेटी, मेरा बेटा और पूरे रिश्तेदार हमारे जितने हैं, सारे के सारे अहले हदीस हैं, जिसको सलफी कहते हैं। तो मैं जब हदीसों को हटा गया और जो है उनको जब पता चला तो वो उन पर जैसे क़यामत टूट पड़ी। तो इसी बुनियाद पर जो है उन्होंने मेरे साथ बायकॉट कर लिया। हालांकि जिस वक्त उन्होंने मेरे साथ बायकॉट किया, ये लगभग आज से 5 साल पुरानी बात है, उस वक्त मैं अभी कुरान को मान रहा था। मैं ये मानता था कि कोई अल्लाह है जिसने कुरान को भेजा। उस वक्त अभी मेरा ईमान बाकी था, सिर्फ हदीसों को मैंने अपनी जिंदगी से जो है हटा दिया था। इसी बेस पर जो है मेरे तमाम रिश्तेदारों ने, मेरी वाइफ मुझे छोड़ गई, क्योंकि उसके मुताबिक, उसकी जो है अकॉर्डिंग मेरा रिश्ता टूट चुका था, क्योंकि मैं हदीसों को नहीं मानता। और हदीसों को नहीं मानने का मतलब मैं नमाज नहीं पढ़ता, और हदीसों को नहीं मानने का मतलब मैं रोजा नहीं रखता, हदीसों को नहीं मानने का, क्योंकि जितनी सारी बातें हैं सारी की सारी हदीसों से जो है कनेक्टेड है। तो अब अगर मैं उनको नहीं मान रहा तो इसका मतलब जो है मैं उनके नजदीक मैं मोमिन नहीं हूँ, और निकाह भी हदीसों ही के अनुसार होता है। तो अब वो उनके मौलवी ने, उनके स्कॉलर ने ये बताया कि ये शख्स अब काफिर हो चुका है और तुम्हारा रिश्ता इससे टूट चुका है। तो इस बेस पर मेरी 27 साला जिंदगी जो शादी की थी, मेरी वाइफ मुझे छोड़कर चली गई, मेरे बच्चे मुझे छोड़ गए, मेरे पेरेंट्स और जो है मेरी बहनें, सब लोगों ने मेरे साथ जो है रिश्ता नाता तोड़ लिया। और यही हालात थे, ऐसे ही थे। बहरहाल इसी कैफियत में जो है बहरहाल मैं जो है दूसरी शादी किया, और आज मेरी सेकंड वाइफ मेरे साथ है। मेरी जो है सेम लाइक माइंडेड है, बहुत अच्छी है, बहुत समझदार है, बहुत बहुत इतनी खूबियों वाली है मैं बता नहीं सकता। अगरचे कि खूबियां मेरी फर्स्ट वाइफ में भी बहुत सी थी, लेकिन उसके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो मजहबी है और कट्टर मजहबी है। बस ये एक ही प्रॉब्लम है। पहली वाली वाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ये एक ही मसला था, लेकिन इस एक मसले ने सब कुछ में मुझसे जो है छीन लिया। मेरी बेटी इस वक्त आज की तारीख में जो है, मैं चूंकि अब ये बातें 5 साल पुरानी कह रहा हूँ, तो आज की तारीख में मेरी बेटी 30 साल की है, मेरा बेटा 25-26 साल का है, और मेरी 30 साला बेटी मुझसे पर्दा करती है। वो इसलिए कि मैं उसके नजदीक काफिर हूं, मैं अजनबी हूं। कोई रिश्तेदार, कोई जो है खानदान वाले मुझसे मेरा नाम तक लेना नहीं चाहते, इसलिए कि मैं उनके नजदीक काफिर हूं। मेरे वालिद और मेरी बहनें, तमाम बहनें आलिमात हैं, डॉक्टर फहद हाशमी की शागिर्दाएं हैं। ये अलहुदा इंटरनेशनल, आप शायद जानती होंगी, ये उसी से जो है एसोसिएटेड हैं। मेरे शहर में, मेरे इलाके में उनके जो है सेंटर्स हैं, ये वो उसके बहुत जो है बहुत एक्टिव मेंबर्स हैं, और जो है बड़ा जो है बहुत उनका बहुत बड़ा नेटवर्क है। वो लेडीज पर जो है वो उनकी बड़ी अच्छी ग्रिप है। वो सारी, कई लड़कियां उनके यहाँ पढ़ने आती हैं, वो सारी मुअल्लिमात हैं, टीचर्स हैं, और सारी की सारी जो है प्योर ये जो है सलफी हैं, अहले हदीस हैं। तो उन सब का ये मानना है, और उन्होंने मेरे सामने बाकायदा ये कहा कि शुक्र करो कि आप हिंदुस्तान में हो, अगर आप किसी इस्लामी देश में होते तो आपकी गर्दन उड़ा दी जाती। अब मेरे बारे में मुझे जो कुछ कहना है, वैसे तो कई बार मैं कह चुका हूँ मुख्तलिफ चैनल्स पर। लोग मेरी इन बातों से बहुत
अच्छी तरह वाकिफ हो चुके हैं, फिर भी मैं शॉर्ट में ब्रीफली जो है मैं अपनी कुछ बातें कहूँगा कि देखें, मेरी उम्र जिस वक्त 10 साल थी, मैंने कुरान को हिफ्ज कर लिया था और उसके बाद मेरे वालिद साहब का ये इरादा था कि मैं आलिम कोर्स करूं। तो मेरे शहर की एक जामिया है जिसका नाम मैं लेना सिक्योरिटी रीज़न की वजह से नहीं पसंद करूंगा, तो उसमें मुझे दाखिल करवाया गया। तो वहाँ पर मैंने आलिमियत का कोर्स भी किया। वैसे और मज़ीद जो है मैं पढ़ना चाहता था, लेकिन हुआ ये कि जो है मेरे घर के जो भी हालात थे, जो मतलब फाइनेंशियल जो कंडीशन थी, माशी हालात की वजह से मुझे अपनी एजुकेशन जो है इनकम्प्लीट छोड़नी पड़ी और मैं जॉब के लिए सऊदी अरब चला गया। जिस वक्त मैं सऊदी अरब गया उस वक्त मेरी उम्र 17 साल थी और सऊदी अरब में मैं लगभग जो है 31 ईयर्स रहा और उसके बाद 2014 में जो है मैं वापस अपने मुल्क, अपने शहर आ गया हिंदुस्तान, और तब से मैं यहीं पर हूँ। तो अब सऊदी अरब में क़याम के दौरान मुझे बहुत कुछ वहाँ पर वहाँ के उलमा से, जो स्कॉलर्स हैं, जो अरब हैं, उनके साथ बहुत कुछ सीखने का, समझने का मौका मिला। मैंने जो है वहाँ पर, क्योंकि मैं अरबी ज़बान सऊदी अरब जाने से पहले ही जानता था, लेकिन वहाँ जाने के बाद मज़ीद मुझे जो है कुछ उस पर यानी उस पर जो है और मज़ीद बेहतरी हुई और जो बेसिक जो किताबें हैं, जो बेसिक बुक्स हैं, उनको पढ़ने और जो है समझने का, फिर जो है वो जो स्कॉलर्स हैं उनके साथ वक्त गुजार कर बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और सऊदी अरब में मेरे क़याम के दौरान वैसे तो मैं गया था जॉब के लिए, और कुछ ऐसा मौका मुझे मिला कि जो है वहाँ पर जिस जगह मैं रहता था वो वहाँ पर एक गवर्नमेंट की एक जामे मस्जिद थी, उसमें मुझे लगभग 6.5 साल वहाँ पर इमामत और खिताबत का मौका मिला सऊदी अरब। तो उस दौरान भी जाहिर बात है मैं अरबों से जो है मैं दिन भर दिन रात जो है मेरा ताल्लुक़ था, मैं उनके साथ अपना वक्त गुजारता। तो इस एतबार से मुझे वहाँ रहने के दौरान इस्लाम को बहुत कुछ समझने और बहुत कुछ जानने का मौका मिला। ये एक शॉर्ट जो है मेरी हिस्ट्री है। अलबत्ता और एक बात मैं यहाँ जोड़ दूँ कि सऊदी अरब में जॉब के लिए जब मैं गया वो 1983 की बात है, लेकिन उससे 1 साल पहले, क्योंकि बचपन से मुझे 2 बातों का बड़ा शौक था। एक ये कि मैं कुरान को बेहतरीन अंदाज से पढ़ूं और दूसरा ये कि मैं कुरान को बेहतरीन अंदाज से लिखूं। कुरान को पढ़ना और बेहतरीन लिखना ये मेरी हॉबी थी बचपन ही से। मेरी उम्र जिस वक्त जो है शायद 10-11 साल की, तभी से जो है मैं कुछ ना कुछ लिखता था, कुरान की जो है कैलीग्राफी जिसे कहते हैं। और जितने भी जो है बड़े बड़े जो मशहूर जो कारी हैं, जैसा इजिप्ट के हैं और कुछ सऊदी अरब के भी जो है जो मशहूर कारी हैं, उनकी एज इट इज मैं नकल किया करता, उनकी कॉपी किया करता। तो इस शौक का मुझे एक फायदा ये हुआ कि अपने शहर से मेरा सिलेक्शन हो गया 1982 में। वो जो मक्का में बोल किरत और हिफ्ज का कंपटीशन होता, मुझे सऊदी अरब के लिए अपने शहर की नुमाइंदगी करने को जो है मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैं जॉब के लिए जो 83 में गया, उससे 1 साल पहले मैं सऊदी अरब चला गया और वहाँ पर अपने शहर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो वर्ल्ड किरत कंपटीशन में जो अंडर 16 एज के जो है जो स्टूडेंट होते हैं, तो मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया था। तो मैं 1982 में वो वर्ल्ड किरत कंपटीशन में जो है मैं शरीक रहा। मुझे कोई प्रोमिनेंट कोई प्राइज तो नहीं मिला, लेकिन अलबत्ता बहुत से ऐसे एंकरेजियस प्राइजेस मिले।
बहुत से कुछ कैश भी मिला मुझे और बहुत सारे गिफ्ट मिले, कोई टेप रिकॉर्डर है, कोई घड़ी है, और वो जो है जानिमाज होती है जिसपे वो जिसपे जो है किबला नुमा होता है, ब्रीफ केस है और सर्टिफिकेट हैं और भी बहुत सारी चीजें मिली। और उसके साथ साथ मुझे जो उस वक्त मेरे लिए बड़ी बड़ी इम्पोर्टेंट जो बात मेरे लिए थी वो ये कि मुझे दुखूल काबा का मौका मिला। काबे के अंदर मैं जो है गया, ये 1982 की बात है, मैं काबे के अंदर गया, मस्जिद हराम नहीं कह रहा हूँ, काबे के अंदर। और वो उसकी वजह ये थी कि जो है वो उन पार्टिसिपेंट्स को जितने भी जो है वो दुनिया भर से आते हैं, पूरी दुनिया से जो है वहां पर मक्का में जो है जमा होते हैं वो वर्ल्ड क्लच कॉम्पिटिशन में, तो उन पार्टिसिपेंट्स के लिए ये स्पेशल जो है ये अपॉर्चुनिटी होती कि गवर्नमेंट की तरफ से बड़े एजाज के साथ उनको काबे के अंदर दाखिले का जो है उनको मौका मिलता। ये सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से एक तरह का ऑनर होता है। तो मुझे भी यह मौका मिला। और काबे के अंदर वैसे तो जो है 2 रकात नमाज पढ़ने की परमिशन थी। हमें ये कहा गया था कि अंदर जाना, यानी असल में अंदर किस तरह से, पहले तो नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, क्योंकि वो काबा में एंटर होने के लिए जो उसका डोर है वो काफी हाइट पर है। तो नीचे एक लैडर लगाई जाती, उस लैडर से ऊपर की तरफ चढ़ना होता है, चढ़ के फिर अंदर एक लैडर होती है, फिर नीचे की तरफ उतरना होता है। तो हमें ये काबा में एंटर होने से पहले हमें बताया गया था कि अंदर 2 रकात नमाज पढ़नी है। तो हमने कहा ठीक है। तो जब मैं अंदर गया तो अंदर तो खैर अंधेरा है, कोई लाइट वाइट नहीं होती, काफी बड़ा है, बड़ा कमरा जैसा है, रूम जैसा होता है। तो बहुत से लोग हैं, एक तो हमारे खुद मेरे जितने भी जो है जो स्टूडेंट्स हैं ये हैं, उसके साथ साथ मौका मिल गया तो और दूसरे लोग भी उसके अंदर जो है दाखिल हो गए। खैर अंदर जो है 2 को जो सिक्योरिटी के जो है जो पुलिस की तरफ से होते हैं, 2 लोग, 2 सऊदी लोग थे। तो मैं 2 रकात नमाज पढ़ा और इधर उधर देखने लगा, कोई मुझे वापस बाहर नहीं कर रहा था, तो मैं और मजीद 2 रकात पढ़ लिया। उसके बाद भी किसी ने मुझे जो है बाहर नहीं किया तो मैंने और 2 रकात नमाज पढ़ ली। तो इस एतबार से मुझे 6 रकात काबे के अंदर नमाज पढ़ने का मौका मिला। खैर बिला हुआ ये कि जो है फिर में हम बाहर आ गए और ये मेरा जो है बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस रहा। जो जिस वक्त मेरी उम्र 16 साल थी, ये 1982 की बात है। तो ये कुछ यूँ समझिए कि जो है वो यानी खास बातें जो मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई हैं, मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने शेयर की। और मजीद आप क्या जानना चाहेंगी? मेरा तो आगे जाने से पहले मैं आपको पहले भी देखना था कि आप रुकेंगे, तो फिर मैं क्योंकि आप इतना अच्छा बोल रहे हैं तो मैं जरा आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाहती। मगर आपने कहा हम लोग ऐसे अंदर गए थे, तो आपने अंदर कुछ ऐसी चीज देखी जिस चीज से आप सोचे ये कैसे खाने काबा है, ये कैसे खुदा का घर है? कुछ ऐसी चीज थी जो कि आज आप पीछे देखें, सोचें तो आप बोलें ये सही, मतलब आज जब मैं सोचता हूँ वो ठीक नहीं था? नहीं सर, आज की बात तो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है, लेकिन उस वक्त होता ये ना बहन कि देखें, इंसान जब तक मोमिन है तो मुझे ऐसा लगता है कि ईमान एक ऐसा पर्दा है किसी की अकल पर या किसी की आंखों पर कि बहुत कुछ सामने होते हुए भी जो है उसे बहुत कुछ नजर नहीं आता। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। मोमिनीन की सबसे बड़ी कि वो जानना या सोचना, समझना, परखना, जांचना नहीं चाहते। उनको तो सिर्फ मानने से जो है सरोकार होता है, वो मानना चाहते हैं, मान रहे होते हैं। तो असल में उस वक्त तो खैर मैं एक मानने वाला था, अगरचे कि दूसरी और बहुत सी बातें थी जो मेरे जो है मेरी बचपन ही से कुछ बातें मुझे खटकती थी, लेकिन उस वक्त पर्टिकुलरली मुझे ऐसी कोई बात मुझे याद नहीं है कि जो है मैं इस पर कोई डाउट किया। बस हमें तो ये बताया गया था कि जो है ये अल्लाह का घर है, और अब हम वैसे ही एक्साइटेड थे कि जो है हमें अल्लाह के घर के अंदर जो है जाने का मौका मिल रहा है। तो अभी इसी में जो है हम खुशी से जो है यानी फूले नहीं समा रहे थे। तो ये एक एक्साइटमेंट थी, और मैं समझता हूँ कि हर मोमिन की ये जो है बहुत बड़ी अचीवमेंट समझी जाती है कि काबा के अंदर दाखिले का किसी को जो है अगर
कोई ये अपॉर्चुनिटी मिली तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और फिर मेरे साथ ये भी हुआ कि लास्ट में जब हम निकल रहे थे तो उससे एक दिन पहले सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जितने पार्टिसिपेंट्स थे उन सबको 1-1 मीटर गिलाफ काबा, जो कि 1 साल तक काबा के ऊपर रहता है, उसमें का 1-1 मीटर जो है सबको मिला था, जो अभी भी मेरे साथ मेरे पास है। अब वो कुछ लोग कहते हैं यार अब ये रख के तुम क्या करते हो? अब नहीं, मैं समझ सकती हूँ। तो अब मैंने कहा कि वैसे जो है वो मैं जब आया तो उसमें हमारे एक बहुत खास अजीज थे, उनका जो है बहुत उस पर जो है अकीदा था, तो वो उसी वक्त मेरे से उसमें से आधा मीटर वो ले गए। उसके बाद हमारी एक रिश्तेदार हैं, वो उनकी रिक्वेस्ट थी तो जो है वो उसमें से और आधा करके ले गए। इस वक्त मेरे पास जो है अभी 1.25 मीटर रखा हुआ है, आज भी मेरे घर में है। अब मैं उसको देखता हूँ तो अब मैं हंसता हूँ और फिर मुझे पूरी कहानी याद आ जाती है। मैं इसलिए रखा हूँ कि ये एक यादगार है, चलो रहने तो पड़ा है घर में, क्या क्या फर्क पड़ने वाला है। 1.25 मीटर अभी भी मेरे पास रखा हुआ है। तो खाने काबा आपने कहा ना आपने अंदर से देखा हुआ है, तो आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि खाने काबा अल्लाह का घर जो है वो अंदर से कैसे दिखता है? मतलब बहुत खूबसूरत है, उसको बहुत डेकोरेट किया हुआ या सिंपल से है? नहीं, अंदर तो हर सिंपल है। अंदर भी एक और जो है कपड़े का एक गिलाफ होता है, जिस तरह से बाहर होता है अंदर भी है, लेकिन अंदर कोई डेकोरेशन नहीं होती, सिंपल सा वो कपड़े, जिस कपड़े में जो है जिस कपड़े का अंदर का गिलाफ है उसमें वो वेविंग के अंदर ही जो है कुछ कुरान की आयतें, फिर जो है कुछ कलिमात वगैरह जो है उसमें वेव किए हुए थे बुन्नत में। बाहर अलबत्ता बड़ा जो है उसमें डेकोरेशन होता है, गोल्डन जो है वो थ्रेड से उसकी पूरी एम्बोज तरीके से जो है उसकी पूरी बहुत, क्योंकि मक्का ही के अंदर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है जिसमें ये गिलाफ जो है काबे का बनता है, वहां खुद उसको बनाया जाता है और सारा काम मैनुअल होता है। तो वो उस फैक्ट्री में भी हम गए थे जहां पर यह गिलाफ काबा बनता है। वेरी इंटरेस्टिंग।